نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا جو خطبہ ہے، اور علماء لکھتے ہیں اس بات کو مفہوماً، حدیث کا مفہوم نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز عطا کی ہے، جو ظہر سے 2 رکعتیں نکلی تو باقی 2 رکعتیں کہاں گئی؟ فرمایا کہ جو شخص جمعے کی یہ 2 رکعتیں ادا کرے گا اس کو ظہر کی نماز کا ثواب مل جائے گا، پیچھے رہ گی 2 رکعتیں، تو جس شخص نے خطبہ پڑھ لیا، خطبے میں شامل ہو گیا، اس کی سماعت کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظہر کی نماز کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ خطبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور حکومت سے قبل جو خطبہ تھا وہ عربی زبان میں ہی ہوا کرتا تھا، اور امام آتا تھا عربی میں خطبہ دیتا تھا۔ جب امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرے علاقے تھے جہاں پر عربی نہ بولی جاتی تھی، تو آپ نے وہاں کے اماموں کو حکم دیا کہ عربی خطبے سے پہلے جو وہاں کی مقامی زبان ہے اس زبان کے اندر لوگوں کو واعظ کیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے، ان کی خلافت سے، ان کی حکومت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ خطیب عربی خطبہ پڑھنے سے پہلے لوگوں کو واعظ کرتا ہے۔ یہ تب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس طرح کی واعظ کرنا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور اس طرح کے واعظ کو سننا ان لوگوں کی سنت ہے جس نے عمر بن خطاب کے خطابات کو سنا ہے۔ یہاں پہ آ کر بیٹھ جانا۔ جمعے کے دن کے اگر برکتوں کے حوالے سے بندہ گفتگو کرے تو بے شمار فضائل، برکات اور انعامات اس دن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ چند ایک باتیں جمعے کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، اور اس جمعے کی اللہ تعالیٰ کیا کیا فضیلتیں بندوں کو عطا کرتا ہے اور کیا فضیلت ہے اس دن کی، ہم گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر 3 مرتبہ اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر جو بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا کر دے گا۔ 100 حاجات اس کے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اور ان 100 حاجات میں سے، تمناؤں، دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ 30 دعائیں اس کے لیے دنیا میں رکھے گا اور 70 دعائیں اس کی آخرت میں قبول کرے گا۔ 30 دعائیں اس کی دنیا میں، وہ 30 دعاؤں میں جو دنیا مانگ لے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا، طیب اور حلال۔ 70 دعائیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ کر دے گا۔ کل قیامت کے دن وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ان 70 دعاؤں کا اجر پائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک دعا کی ہے چلو ایک ہی مرتبہ مانگ لے جو مانگنے تیری، نہ، فرمایا ایک جمعے کے بدلے جس نے میرے محبوب پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اس کی 100 تمناؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ 30 دعائیں اس کی دنیا کی ہوں گی، 70 دعائیں اس کی آخرت کی ہوں گی، اور اگر ہر جمعے وہ پڑھتا رہے گا تو ہر جمعے اللہ تعالیٰ اس کی 100 دعاؤں کو اس کے لیے ذخیرہ کرے گا، جن میں سے 30 دعائیں اس کی دنیا کی ہوں گی، 70 دعائیں اس کی آخرت کی ہوں گی۔ کل قیامت کے دن جب تک وہ اپنی دعاؤں کا ثمر حاصل نہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ وہ 70 دعائیں جس طرح کی ہوں، قیامت کے دن وہ جو مانگ لے، جن کی مرضی چاہے بخشش کروا لے۔ اس دن کے اندر سب سے زیادہ بندے کو کیا ضرورت ہے؟ اپنی بخشش، پھر کیا ہے؟ رشتہ داروں کی بخشش، آل اولاد کی بخشش، دوستوں یاروں کی بخشش، امت مسلمہ کی بخشش۔ کون طلب؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ جنت تجھے مل گئی، پہلی دعا تو قبول ہو گئی، باقی دعاؤں کو کیا کرے گا؟ باقی جتنی بھی دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پیارے آقا کی امت کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ اتنا اجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہر درود کے بدلے ایک دعا دے گا
کہ مانگ تو نے میرے محبوب پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، جا ایک دعا دیتا ہوں، جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے ہر درود کے بدلے۔ یہی بات ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عزتیں عطا کی ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، میں نے محنت کی، میں نے علم کو حاصل کیا، فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں ہے، میں ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ اپنے آقا پر درود سلام پیش کرتا تھا۔ حضرت پیر محل شاہ گولڑوی تاجدار گولڑی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا جو مرتبہ عطا کی ہے وہ اس وجہ سے عطا نہیں کیا کہ میں تہجد گزار تھا، میں لوگوں کو درس دیا کرتا تھا، نہیں، فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن میرا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں 5000 مرتبہ اپنے آقا پر درود السلام پیش کیا کرتا تھا۔ وہ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ، کیا آپ بڑھاپے میں جا کے ولی بنے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا فیض اس گرانے کو عطا کی ہے، 11 سال کی عمر میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقام حضوری پہ فائز ہو چکے تھے۔ اور مقام حضوری کس مقام کو کہتے ہیں کہ بندہ جب چاہے جس وقت چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ان کی زیارت نصیب کر لے، اسے کہتے ہیں مقام حضوری۔ اسی وجہ سے آپ کے دور آپ کی زندگی کا واقعہ ملتا ہے، آپ ایک مسجد میں تشریف لے کے گئے اور وہاں پر ایک قصیدہ بردہ، یہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ کوئی عام قصیدہ یا عام عربی عبارت نہیں ہے، اس کی برکت کتنی ہے۔ حضرت امام بصیری قصیدہ بردے والا کہا جاتا ہے انہیں، چادر والے، آپ شدید بیماری کی حالت میں تھے، فالج تھا پورے جسم پر، تو آپ نے اسی حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ پڑھا، مولایا صلی وسلم دائماً آبادا، یہاں پہ آگے آپ خاموش ہو گئے، یہ قصیدہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہ بول اتنے پسند آئے کہ آپ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بصیری تیرا کیا حال ہے، اور اپنی کملی مبارک اتار کے آپ کے آدھے بدن پر کملی ڈال دی۔ فرماتے ہیں جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر چادر موجود تھی، اور جس جس جگہ وہ چادر تھی اللہ تعالیٰ نے اس تمام جسم کو فالج سے شفا عطا کی ہوئی تھی، فالج سے شفا یاب تھا میرا وہ جسم۔ صرف کیا لکھا، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا، یہاں پہ آ کے خاموش ہو جاتے، دوسرا جملہ نہ بڑھتا، سرکار نے فرمایا کہ بصیر پڑھ تو صحیح کیا لکھا ہے، عرض کی مولایا صلی وسلم دائماً ابدا، فرمایا آگے پڑھو، ہاتھ جوڑ لی یا رسول اللہ، آگے بصیری کا علم جواب دے گیا ہے، دوسرا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پڑھوں، فرمایا یہ تو نے کہہ دیا ہے کہ اے میرے مولا تجھ پہ صلوات پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ مولا کون ہے، اسی طرح پڑھ دے علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ دوسرا مصرع قصیدہ بردہ کا حضرت امام بصیری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ امام بصیری کا جملہ ہے۔ اگلا جملہ علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ عطا کیا ہے، اور یہ جس مرض کے لیے بندہ اس کا وظیفہ کرے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بہت یہ جو عملیات ہے، علم عملیات کے اندر اس قصیدے کے بہت سے عمل کیے جاتے ہیں، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت سے عمل کرتے ہیں، تو ایک بابا ہے وہ اس کا عمل کیا کرتا تھا، تو جو بندہ ادب میں کمی کرتا، غفلت سستی کرتا تو وہ نقصان پہنچاتا، جنات کے ذریعے دوسرے چیزوں کے ذریعے وہ اسے نقصان پہنچاتا، تو وہ محلے کے اندر یا عام 2 نمبر بندہ آ جائے، ایک پھونک مار دے شفا ہو جائے، تو بندے کہتے ہیں یار اس جیسا پیر ہے ہی کوئی نہیں، تو سب مان لیتے ہیں، تو وہ آیا اور سارے بندے استقبال کر کھڑے ہو گئے، لیکن جمعے کا دن تھا، پیر محل شاہ اپنے آقا پر درود پڑھ رہے تھے، عمر تھی 11 برس کی، جب اس نے دیکھا کہ سب کھڑے ہیں، یہ پہلے سامنے بیٹھا بچہ کھڑا نہیں ہوا، تو اس نے کہنے لگا کہ بچے اٹھ کھڑا ہو، آپ اپنے دھیان سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا کہ تو اٹھتا ہے یا پڑھوں قصیدہ،
आपने उसकी तरफ रुख करके कहा कि इस तरह कर, तू कसीदा पढ़ ले, मैं कसीदे वाले को बुलाता हूँ। ये 11 साल की उम्र है हज़रत पीर महर अली शाह की, जिसके बढ़ापे के अंदर जाके अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का ऐसा काम लिया है कि आज भी कादियानी इस बंदे के नाम से कामते हैं। ये ऐसा मुहाफिज ख़त्म नबूवत है पीर महर अली शाह। तो ये तमाम फ़ज़ाइल व बरक़ात अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ने पे जितने फ़ज़ाइल रखे हैं, बंदा सोच ही नहीं सकता कि कितने फ़ज़ाइल हैं। ये मावराउ नहर चले जाएं, ये पीछे के जो उलमा हैं वहाँ के एक वाक़या पेश करते हैं कि हम लोग उलमा लिखते हैं कि हम मावराउ नहर गए और वहाँ पे 10 बजे का वक्त था कि हम एक अपने दोस्त के यहाँ मस्जिद में गए और आराम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हमारे इलाकों में 1 बजे जुम्मा होता है। वो कहते मैं उठा, 10 बजे का वक्त था, तो मैं बाहर आया, देखा पूरी मस्जिद नमाजियों से बंदों से भरी पड़ी है। तो मैंने सोचा शायद कोई ख़त्म पाक है या कोई फोत हुआ है या कोई और वजह होगी। तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा ये मस्जिद में रश किस चीज़ का है, कोई महफिल है, कोई ख़त्म है? कहा नहीं, जुम्मे के लिए आए हैं। कहते जुम्मे के लिए 10 बजे कौन आते हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ का ये रवाज है कि 10 बजे क्या सुबह 8 बजे से लोग आना शुरू हो जाती हैं और 1 बजे तक जुम्मे का इंतज़ार करते हैं, अपने पूरे हफ्ते की क़ज़ा नमाज़ों को लुटाते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, ज़िक्र व अज़गार करते हैं, 1 बजे वो जुम्मा पढ़ के वापस जाते हैं। इसका सबब क्या है? हदीस पाक में है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को अपना दीदार कराएगा। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं किस तरह कराएगा दीदार? सबको होना है, किस तरह होना है? जो नेक बंदे हैं, जो अल्लाह ताला के औलिया हैं, और वो दिन जुम्मे का दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को अपना दीदार कराएगा। जुम्मे के दिन किस अंदाज में कराएगा कि जो बंदा आज नमाज पढ़ता है, कल जब अल्लाह का दीदार करेगा, आज जिस तरह की वो नमाज पढ़ता है कल उस तरह का उसे दीदार होगा। आज बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज के अंदर उसे दुनिया के वसवसे आते हैं, दुनिया के ख़यालात आते हैं और वो उन ख़यालात में खो जाता है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कल जन्नत में जब उसे अपने रब का दीदार होगा तो ये जो वसवसे जिनके अंदर वो खो जाता है, लिज़्ज़त महसूस करता है, गुम हो जाता है, ये अल्लाह के दरमियान और उसके दरमियान पर्दे बन जाएंगे और इस हाल में उसे अपने रब का दीदार होगा कि दीदार भी होगा और नहीं भी होगा। और वो बंदा जो आज इस तरह नमाज पढ़ता है कि वसवसे आए तो उसे दूर कर देता है, तो कल क़यामत के दिन, कल जन्नत में जब उसे रब का दीदार होगा तो अगर कोई पर्दा आएगा तो अल्लाह ताला उस पर्दे को हटा देगा। और वो बंदा जो इस आलम में, इस कैफियत में अपने रब की बारगाह में नमाज पढ़ता है कि पर्दा, कोई वसवसा आता ही नहीं है, कल क़यामत के दिन, कल जन्नत में जब वो अपने रब का दीदार करेगा तो उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा आएगा ही नहीं। और वो बंदा जो नमाज पढ़ता ही नहीं है, वो कैसे इस बात की तमन्ना रख सकता है कि कल क़यामत के दिन, कल जन्नत में जब वो चला जाएगा तो अपने रब का दीदार करेगा, जन्नत में जाएगा, ये नहीं कि नहीं जाएगा, हर कलमा को जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से अपनी सज़ा पा लेने के बाद। लेकिन अगर उसने नमाज पढ़ी ही नहीं है तो वो किस मुंह से कहता है कि मैंने अपने रब का दीदार करना है? नहीं होगा दीदार। ऐसा बंदा जो नमाज पढ़ता है और वसवसे आते हैं, उसे इस तरह का दीदार हो रहा है कि उसके दरमियान और उसके रब के दरमियान पर्दे हाइल हैं, तो जिसको नमाज का तसव्वुर ही नहीं है। और वो बंदा जो नमाज जिसको आती ही नहीं है, एक है चलो आती है लेकिन पढ़ता नहीं, जिसने नमाज सीखी ही नहीं है उसका क्या हाल होगा? कल क़यामत के दिन फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब नमाजों का पूछेगा तो ये लोग सजदा करने लगेंगे अपने रब को कि हम आज सजदा कर देते हैं, बच जाएंगे। अल्लाह ताला उनकी कमर के अंदर सरिया डाल देगा, वो झुक ही नहीं सकेंगे। सजदा तो क्या, वो रुकू तक नहीं आ सकेंगे, कमर में सरिया होगा। फिर क्या करेंगे मैं और आप? फजल करे थे बख्शे जामन में वर्गे मुकाले, अदल करे थे थरदर कंबन ऊंचियां शाना वाले। जब अदल वालों का ये हाल है, हज़रत
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में पेश कर देता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर बंदे के पास बंदे जाएंगे, हर नबी के पास ये लोग जाएंगे और जाके कहेंगे आज दुआ कर दें, तो हर नबी ये कहेगा कि नहीं, आज नहीं, आज अपने रब की बारगाह में खुद अपनी सिफारिश करो। हम नहीं बोल सकते क्योंकि अल्लाह ताला का गज़ब और उसका जलाल अपने इंतहा पर है। हम कैसे अपने रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करें। ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया जमा होकर फिर इकट्ठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हाँ आओ मेरे पास। आदम को अल्लाह ताला ने एक दुआ दी थी, जो आदम ने अपनी इस ज़मीन पे आकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करके अपनी तौबा को कर लिया था, कबूल करवा लिया था। नूह अलैहिस्सलाम को दुआ दी, उन्होंने कश्ती किनारे लगा ली थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुआ दी, उन्होंने अपने रब से औलाद ले ली थी। इस्माईल अलैहिस्सलाम को दुआ दी, उन्होंने अपनी हाजत पूरी कर ली थी। तमाम अंबिया को, मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ दी थी, उन्होंने मेराज पे वो दुआ की थी। ईसा अलैहिस्सलाम को दुआ दी, उन्होंने अपने अमल में दुआ की थी। लेकिन मुझे मेरे रब ने दुआ दी थी, मेरा रब कहता रहा महबूब मांग, कुछ तो मांग, कुछ तो मांग, लेकिन मैंने नहीं मांगा। मैंने आज के दिन के लिए वो दुआ महफूज करके रखी है। आज मैं दुआ अपने रब के हुजूर पेश करने वाला हूँ। ये वो वक्त होगा, लेकिन उम्मत कहाँ होगी, जहन्नुम में होगी। जिस मर्जी किताब का मुताला करो, जब रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, उस वक्त प्यारे आका जहन्नुम की तरफ देखेंगे तो आपके दिल के अंदर गम पैदा होगा। क्यों? क्योंकि उम्मत जहन्नुम में सड़ रही होगी। यहाँ पे अब शेर नहीं बनता कि अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियाँ शाना वाले, फजल करे थे बख्शे जामन मैं वर्गे मुँह काले। इस शेर का मतलब ये है कि रब की अदल की वजह से ये लोग जहन्नुम में जा चुके होंगे। अब रब का फजल होगा कि वो इन्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। ना कि ये शेर का मतलब समझो कि क़यामत के दिन हशर के मैदान में जाते ही रब का फजल हो जाएगा और तुम लोग सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये कतई इस शेर का मतलब नहीं है। नमाज जुम्मा और जुम्मे का दिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जुम्मे के दिन फरमाया करते थे, जिस शख्स ने खूबसूरत कपड़े पहने, खूबसूरत गुस्ल किया, मिसवाक किया, अपने आप को इत्र से तर किया और वो मस्जिद में आया और इस हाल में आया कि उसने लोगों के कंधों को ना फलांगा और वो आगे आके बैठा या पीछे जगह मिली पीछे बैठ गया, पिछले जुम्मे से इस जुम्मे तक उसके जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। और ये प्यारे आका की सुन्नत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कपड़े पहना करते थे। और रही बात आपके, तो कपड़े जैसे भी हों, कपड़े साफ हैं, जैसे भी हों। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी आपके दौर के अंदर एक बंदे ने कह दिया, तर्जमा कर रहा था और कहा रसूलुल्लाह इस हाल में मस्जिद में दाखिल हुए कि आपके कपड़े मैले थे। फरमाया किस तरह की बात कर रही है, बकवास है। और जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक को मैला के, आपने फरमाया वो बंदा दारा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। और फरमाया अगर कुछ बयान करना है तो इस तरह बयान करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए और इस हाल में दाखिल हुए कि खाक ने रसूलुल्लाह के दामन में पनाह ली हुई थी। इस अंदाज में बयान करो अगर कुछ बयान भी करना है। ये है आशिक लोगों का ज़ौक़ और ये है उनकी बातें कि इस अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए कि खाक ने हुजूर के दामन में पनाह ली हुई थी। जुमला देखो, अपना मसला भी बता दिया, कैफियत भी बता दी और अपने इश्क भी जाहिर कर दिया, बेअदबी भी ना हुई। ये बीकन हाउस का निसाब है, जिन्होंने अपने निसाब में लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े गंदे थे। टिक करो या क्रॉस करो, क्या ज़रूरत है ये लिखने की। मरूज़ी के अंदर सवाल दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े गंदे थे, आप बताओ ये ठीक है कि गलत है, टिक करो या क्रॉस करो। क्या ज़रूरत है ये जुमला लिखने की। और हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जिसका एक नाम है, हम कहते हैं यहाँ पे भेजे बच्चा अंग्रेज़ी सीख जाए, बेशक बच्चे की आखिरत तबाह हो जाए, अंग्रेज़ी उसको आनी चाहिए। हम नहीं देखते बच्चा सीख है, बच्चे को दाखिल करने गए और पहले देखो उनका निसाब कैसा है। बेशक हर तालीम हासिल करो, पहली वही ही तालीम के बारे में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
लेकिन ऐसी तालीम नहीं जो तुझे तेरे रब के दूर कर दे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से। ऐसी तालीम जो तुझे तेरे रब के करीब कर दे, ऐसी तालीम हासिल करो। जब बच्चों को भेजना है, बीकन, क्या माना है बीकन का? बीकन सूर को कहते हैं, पपोड़ को कहते हैं, और बीकन हाउस। और ऐसे हाउस में जाके बच्चा बीकन ही बनेगा और क्या बनेगा? इंसान तो बन ही नहीं सकता। और हम ये नहीं देखते, नाम बता रहा है कि अंदर क्या है, नाम बता रहा है, और हम कहते हैं नहीं, जो क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी ना वो कहीं पे नहीं है। बच्चा पढ़ा लिखा बनेगा 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, हमने दाखिल ही यहीं पे करना है। हम ये नहीं देखते, बेशक बच्चे की आखिरत तबाह हो जाए और कल को जब तूने मैंने मरना है, बच्चा इस बात से भी जाता रहे कि दुआ को हलाल समझे। वो कहता है दुआ होती ही नहीं है, बाप गया है, मर गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन कल अल्लाह ताला सारे बंदों को जमा करेगा, जन्नत का दिन और जन्नत का माहौल होगा। अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, जिब्रील तमाम जन्नतियों को निदा दो कि अपने घरों से निकलो, खूबसूरत लिबास पहनो और मेरे महबूब के महल का रुख कर लो। सब लोग अपने अपने महल्ला से निकलेंगे, खूबसूरत लिबास पहनकर, जन्नती खुशबुएं लगाकर, नूरी अमामे सजाकर सरकार के महल की तरफ दौड़ेंगे। जब बाहर आएंगे देखेंगे सरकार के महल के बाद पहले सफ़ रसूलों की, फिर सफ़ अंबिया की होगी। एक नबी जाएंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर बुलाएंगे। तमाम अंबिया, तमाम रसूल घोड़ों पे सवार होंगे, सबसे आगे रसूलुल्लाह का घोड़ा होगा। ऐसे मैदान में आएंगे जो बहुत वसी मैदान होगा, तमाम जन्नती वहाँ पे जमा हो जाएंगे, हर जानों पे जान चीज़ वहाँ मौजूद होगी। उस वक्त अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि आ दाऊद मेरी हमद को बयान करो। लहन दाऊदी, पूरी कायनात के अंदर आज तक दाऊद अलैहिस्सलाम से खूबसूरत आवाज़ किसी नबी की नहीं है। दाऊद अलैहिस्सलाम जिसे अल्लाह ताला ने ऐसा लहन अता फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि दाऊद जब तिलावत किया करते थे, जब अपने रब की हमद किया करते थे, तो परिंदे आके उनके कंधों पे बैठ जाया करते थे, ऊपर से कोई परिंदा परवाज ना किया करता था, ऐसी आवाज़ थी। और जब जन्नत में जाएंगे अल्लाह ताला उनकी आवाज़ को और भी अच्छा कर देगा। और उस अंदाज में फिर फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में रब की हमद को बयान करेंगे, और फिर अल्लाह ताला खुद अपनी हमद को बयान करेगा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाएगा। कल क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह ताला सूरह यासीन की तिलावत फरमाएगा। जब अल्लाह ताला तिलावत कर रहा होगा और सूरह यासीन, ये है वो सूरत, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनने से पहले, सूरह यासीन को कायनात के बनने से पहले 10,000 साल पहले पैदा किया था, इसे तहलीक किया था, लिखा था सूरह यासीन को। लेकिन अल्लाह ताला ने यह सूरत किसी नबी को अता ना की, अपने आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सूरत अता की है। ये इतनी फजीलत वाली सूरत है सूरह यासीन। तो अल्लाह ताला उसकी तिलावत फरमाएगा। और ये सब कुछ जो कुछ भी आज तक हो रहा है, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जुम्मे के दिन, आपके जसद को तैयार किया जुम्मे के दिन, रूह को फूंका जुम्मे के दिन, मलाइका को सिजदे का हुक्म दिया जुम्मे के दिन, मलाइका ने सिजदा किया जुम्मे के दिन। और जहाँ पे एक और बात भी कर दूँ, ये लोग जो जुम्मे के दिन से दूर जा रहे हैं, नमाजों को अदा न करते, उलमा ने लिखा है, फरमाया वो जुम्मे का दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने मलाइका को हुक्म दिया था कि मलाइका आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करो। और वो जुम्मे का ही दिन था जिस दिन इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा ना किया था। तो बंदो अपने गिरबान में झांको, उलमा लिखते हैं अपने गिरबान में झांको, ये जुम्मे का दिन वो दिन है कि जो सिजदा कर लेता है वो अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करता है, और जो सिजदा नहीं करता वो इब्लीस की सुन्नत पे अमल करता है। इसी वजह से फरमाया कि 3 जुम्मे लगातार छोड़ दिए, अल्लाह ताला उस बंदे के दिल को मुर्दा कर देता है और उसके सीने पे मोहर लगा देता है। इसका दिल मुर्दा है, वो चलता फिरता है लेकिन वो मुर्दा है, उसकी सूरत को अल्लाह ताला स्याह कर देता है। ये जुम्मे का दिन है।
अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा, वो जुम्मे का दिन था। अम्मा हवा को पैदा किया, वो जुम्मे का दिन था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, वो जुम्मे का दिन था। आग को उन पे नारे गुलजार किया, वो जुम्मे का दिन था। इस्माईल अलैहिस्सलाम को अता किया, जुम्मे का दिन था। उनकी कुर्बानी जिस दिन हुई वो दिन जुम्मे का दिन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनका बेटा यूसुफ मिल गया, याकूब अलैहिस्सलाम को, वो दिन जुम्मे का दिन था। जब उनकी सफ़ेद आंखों में नूर आ गया, वो दिन जुम्मे का दिन था। जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जब कुएं में फेंका था, जब कुएं से निजात मिली थी, वो दिन जुम्मे का दिन था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जिस दिन किनारा मिला, वो दिन जुम्मे का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को जब मेराज हुई, वो दिन जुम्मे का दिन था। ये तमाम अंबिया के जिसका किस्सा छेड़ लोगे तुम्हें जुम्मे का दिन नजर आएगा। अयूब अलैहिस्सलाम को जब शिफा मिली थी, वो दिन जुम्मे का दिन था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, वो दिन जुम्मे का दिन है। हज़रत इमाम हुसैन की जिस दिन शहादत हुई, वो दिन जुम्मे का दिन है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा, वो दिन जुम्मे का दिन होगा। और जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को अपना दीदार अता करेगा, वो दिन भी जुम्मे का दिन होगा। ये जितने भी कमालात तुम इनामात देखो, रहमतें बरकतें देखो, अल्लाह ताला ने ये सारी बरकतें इस जुम्मे के दिन में रखी है। इस वजह से जुम्मे को जुम्मा कहते हैं। 2 वजह बयान की हैं। जुम्मे को जुम्मा कहने के तमाम बंदों को जमा कर दिया जाता है, इस वजह से जुम्मे को जुम्मा कहते हैं। और तमाम नेकियों को, बरकतों को, रहमतों को अल्लाह ताला जमा फरमा देता है, इस वजह से इस दिन को जुम्मा कहते हैं। यानी जुम्मा जमा होने की जगह, जहाँ पे बंदे जमा हुए हैं, ये कोई इतनी बात नहीं, लेकिन ये वो दिन है कि अल्लाह ताला की रहमतें भी जमा है। मांग लो जो मांगना चाहते हो। एक नेकी करोगे, फरमाया एक नेकी करने पे 70 नेकियों का सवाब अता करूँगा। लेकिन अगर नेकियां ज़्यादा है तो ये भी है, उलमा लिखते हैं कि इस दिन जो बंदा एक गुनाह करेगा, उसके गुनाह को 70 गुना ज़्यादा लिखा जाएगा। नेकियां ज़्यादा है, अजर ज़्यादा है, गुनाह भी ज़्यादा है। जुर्म जितना बड़ा हो, सज़ा उतनी बड़ी होती है। और ये दिन जिसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया, इस दिन के अंदर जिसने अपने रब की बारगाह में सिजदा किया, अपने रब की बारगाह में तौबा की, ये वो दिन है कि अल्लाह ताला 6 लाख वो अफराद जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह ताला उन पर जन्नत को वाजिब फरमाता है। हम लोगों ने ये इज्तिमा छोड़ दिए हैं। हम लोग कहते हैं कि जब दूसरी अजान होगी तब हम जाएंगे। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला मलाइका को हुक्म देता है ज़मीन में फैल जाओ, जुम्मे का वक्त होता है, वो दोनों दरवाजे के एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ 2-2 मलाइका खड़े हो जाते हैं। नूरी कागज़ों पर नूरी कलमों के साथ आने वालों का नाम लिखते हैं। जो ही दूसरी अजान होती है, वो रजिस्टर को बंद कर देते हैं। जब तूने आना ही नमाज के बाद है, खुतबे के दौरान है, बताओ अपना नाम किसको दिखाओगे? कल क़यामत के दिन जब अमाल नामे खुलनी है, तूने कहना मैंने तो कोई जुम्मा छोड़ा ही नहीं है, मैंने तो जुम्मा पढ़ा है। अमाल नामा सामने होगा, दिखा कहाँ पढ़ा है। सरकार ने फरमाया, जब बंदे के मरने का वक्त आता है, उसकी पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म चंद लहज़न के अंदर, दकीक के अंदर उसे दिखा दी जाती है। ये देख तूने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। और फिर बंदा कहता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन नहीं, मौत का फरिश्ता सामने होता है, उसके रूह को निकाल देता है, तो कुछ नहीं कर सकता। अब जो वक्त दिया गया था वो वक्त मुकम्मल हो चुका है। फरमाए जो पहले आता है, सुर्ख ऊँट मक्के के अंदर कुर्बानी करने का अजर अता करता है। दूसरा तबका उसे गाय का सवाब कुर्बानी करने का, मक्के के अंदर सदका करने का सवाब अता करता है। तीसरी बात बकरे का, और चौथी मुर्गी का। 5वें कहा है कि वो अंडे का सवाब मिलता है। अब ये तेरी मेरी मर्ज़ी है कि हमने ऊँट ज़िबा करना है मक्के के अंदर या अंडा तकसीम करना है। 5-10 मिनट की बात है, 10 मिनट पहले आ जाओ, अच्छा सवाब मिलेगा, लेट आओगे अंडा मिलेगा। लेकिन ये है कि सवाब छोटा है, नहीं मजाक की बात नहीं है, सवाब छोटा है। अच्छे नीयत से आओ, अल्लाह ताला यही कबूल कर ले तो काफ़ी है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये ना देखो मैंने ये भी नेकी करनी है, ये भी नेकी करनी है, ये भी नेकी करनी है। फरमाया थोड़ी कर लो, लेकिन इस अंदाज में करो कि उस थोड़े को अल्लाह ताला कबूल कर ले, यही काफ़ी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।